مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. इस बयान में कि जब किसी आलम से ये पूछा जाए कि लोगों में कौन सबसे ज्यादा इल्म रखता है तो बेहतर ये है कि अल्लाह के हवाले कर दे, यानी ये कह दे कि अल्लाह सबसे ज्यादा इल्म रखता है, ये कि अल्लाह ही जानता है कि कौन सबसे बड़ा आलम है। حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر، فقال كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قام موسى للنبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال يا رب وكيف به؟ فقيل له احمل حوتنا في مكتل فإذا فقدته فهو ثم، فانطلق وانطلق بفتاه يوشع بن نون وحمل حوتنا في مكتل حتى كان عند الصخرة وضع رؤوسهما وناما، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبله في البحر سربا، وكان لموسى وفتاه عجبا، فانطلق بقية ليلتهما ويومهما. فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت؟ قال موسى ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا. فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجن بثوب، أو قال تسج بثوبه، فسلم موسى فقال الخضر وأن بأرضك السلام، فقال أنا لموسى، فقال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدنا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى، إني على علم من علم الله علمانيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه لا أعلمه. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال موسى قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. قال لا، ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسي. فكانت الأولى من موسى نسيانا، فانطلق فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده، فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال ابن عيينة وهذا أوكد. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال الخضر بيده فأقامه، فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك. ألا للنبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. हमसे अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल-मिस्नदी ने बयान किया, इनसे सुफियान ने, इनसे उमरों ने, उन्हें सईद बिन जबीर रज़ी अल्लाह अन्हु ने खबर दी। वो कहते हैं कि मैंने इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से कहा कि नौफ बकाली का यह ख्याल है कि मूसा अलैहि अस्सलाम जो खिज़र अलैहि अस्सलाम के पास गए थे वो मूसा बनी इसराइल वाले नहीं थे बल्कि दूसरे मूसा थे। ये सुनकर
इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा बोले कि अल्लाह के दुश्मन ने झूठ कहा है। हमसे इब्बी इब्न काब रजी अल्लाह अन्हु ने रसूल अल्लाह से नकल किया कि एक रोज़ मूसा अलैहि अस्सलाम ने खड़े होकर बनी इसराइल में खुतबा दिया तो आपसे पूछा गया कि लोगों में सबसे ज़्यादा साहिब इल्म कौन है। उन्होंने फरमाया कि मैं हूँ। इस वजह से अल्लाह का गुस्सा उन पर हुआ कि उन्होंने इल्म को अल्लाह के हवाले क्यों ना कर दिया। तब अल्लाह ने उनकी तरफ वही भेजी कि मेरे बंदों में से एक बंदा दरियाओं के संगम पर है, जहाँ फारिस और रूम के समंदर मिलते हैं, वो तुझसे ज़्यादा आलम है। मूसा अलैहि अस्सलाम ने कहा, ए परवरदिगार, मेरी उनसे मुलाकात कैसे हो? हुक्म हुआ कि एक मछली जंबील में रख लो, फिर जहाँ तुम इस मछली को गुम कर दोगे तो वो बंदा तुम्हें वहीं मिलेगा। तब मूसा अलैहि अस्सलाम चले और साथ अपने खादिम और शिबन नून को ले लिया और उन्होंने जंबील में मछली रख ली। जब एक पत्थर के पास पहुँचे, दोनों अपने सर इस पर रखकर सो गए और मछली जंबील से निकलकर दरिया में अपनी राह बनाती चली गई। और ये बात मूसा अलैहि अस्सलाम और उनके साथी के लिए बेहद ताज्जुब की थी। फिर दोनों बाकी रात और दिन में जितना वक्त बाकी था चलते रहे। जब सुबह हुई, मूसा अलैहि अस्सलाम ने खादिम से कहा, हमारा नाश्ता लाओ, इस सफ़र में हमने काफ़ी तकलीफ उठाई है। और मूसा अलैहि अस्सलाम बिल्कुल नहीं थके थे, मगर जब इस जगह से आगे निकल गए जहाँ तक उन्हें जाने का हुक्म मिला था, तब उनके खादिम ने कहा कि आपने देखा था कि जब हम सखरा के पास ठहरे थे तो मैं मछली का जिक्र भूल गया। बकौल बाज सखरा के नीचे आब हयात था, वो इस मछली पर पड़ा और वो जिंदा होकर बक़दरत इलाही दरिया में चल दी। ये सुनकर मूसा अलैहि अस्सलाम बोले कि यही वो जगह है जिसकी हमें तलाश थी। तो वो पिछले पांव वापस हो गए। जब पत्थर तक पहुंचे तो देखा कि एक शख्स कपड़ा ओढ़े हुए मौजूद है। मूसा अलैहि अस्सलाम ने उन्हें सलाम किया। खिज़र अलैहि अस्सलाम ने कहा कि तुम्हारी सरजमीन में सलाम कहा। फिर मूसा अलैहि अस्सलाम ने कहा कि मैं मूसा अलैहि अस्सलाम हूँ। खिज़र बोले कि बनी इसराइल के मूसा। उन्होंने जवाब दिया कि हाँ। फिर कहा, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ ताकि आप मुझे हिदायत की वो बातें बतलाएं जो अल्लाह ने ख़ास आप ही को सिखलाई हैं। खिज़र अलैहि अस्सलाम बोले कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। इससे मूसा, मुझे अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया है जिसे तुम नहीं जानते, और तुमको जो इल्म दिया है इसे मैं नहीं जानता। इस पर मूसा ने कहा कि अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिर पाओगे और मैं किसी बात में आपकी नाफरमानी नहीं करूँगा। फिर दोनों दरिया के किनारे किनारे पैदल चले। उनके पास कोई कश्ती न थी कि एक कश्ती उनके सामने से गुजरी तो कश्ती वालों से उन्होंने कहा कि हमें बिठा लो। खिज़र अलैहि अस्सलाम को उन्होंने पहचान लिया और बगैर किराया के सवार कर लिया। इतने में एक चिड़िया आई और कश्ती के किनारे पर बैठ गई। फिर समंदर में इसने एक दो चोंचे मारी। इसे देखकर खिज़र अलैहि अस्सलाम बोले कि ए मूसा, मेरे और तुम्हारे इल्म ने अल्लाह के इल्म में से इतना ही कम किया होगा जितना इस चिड़िया ने समंदर के पानी से। फिर खिज़र अलैहि अस्सलाम ने कश्ती के तख्तों में से एक तख्ता निकाल डाला। मूसा अलैहि अस्सलाम ने कहा कि उन लोगों ने तो हमें किराया लिए बगैर मुफ्त में सवार किया और अपने उनकी कश्ती की लकड़ी उखाड़ डाली ताकि ये डूब जाएं। खिज़र अलैहि अस्सलाम बोले कि क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। इस पर मूसा अलैहि अस्सलाम ने जवाब दिया कि भूल पर मेरी गिरफ्त न करो। मूसा अलैहि अस्सलाम ने भूल कर ये पहला एतराज़ किया था। फिर दोनों चले। कश्ती से उतरकर एक लड़का बच्चों के साथ खेल रहा था। खिज़र अलैहि अस्सलाम ने ऊपर से इसका सर पकड़कर हाथ से इसे अलग कर दिया। मूसा अलैहि अस्सलाम बोल पड़े कि अपने एक बेगुनाह बच्चे को बगैर किसी जानी हक के मार डाला। गज़ब हो गया। खिज़र अलैहि अस्सलाम बोले कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। इमलाना कहते हैं कि इस कलाम में पहले से ज़्यादा ताकीद है, क्योंकि पहले कलाम में लफ्ज़ लुक नहीं कहा था, इसमें लुक ज़ायद किया जिससे ताकीद ज़ाहिर है। फिर दोनों चलते रहे हत्ता कि एक गाँव वालों के पास आए। इनसे खाना लेना चाहा। उन्होंने खाना खुलाने से इनकार कर दिया। उन्होंने वही देखा कि एक दीवार उसी गांव में गिरने के करीब थी। खिज़र अलैहि अस्सलाम ने अपने हाथ के इशारे से उसे सीधा कर दिया। मूसा बोल उठे कि अगर आप चाहते तो गांव वालों से इस काम की मजदूरी ले सकते थे।
خضر نے کہا کہ بس اب ہم اور تم میں جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ جناب محبوب کبریا رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ موسیٰ پر رحم کرے، ہماری تمنا تھی کہ موسیٰ کچھ دیر اور صبر کرتے تو مزید واقعات ان دونوں کے بیان کیے جاتے اور ہمارے سامنے روشنی میں آتے، مگر موسیٰ علیہ السلام کی عجلت نے اس علم لدنی کے سلسلہ کو جلد ہی منقطع کرا دیا۔ محمد بن یوسف کہتے ہیں کہ ہم سے علی بن خشرم نے یہ حدیث بیان کی، ان سے سفیان بن عنا نے پوری کی پوری بیان کی۔